Welcome in Unacademy Life 7. Today I will discuss chapter dormancy. That is the seed dormancy and germination. That is the part first. First of all, I will discuss what is dormancy. If we provide the favorable condition like temperature, light, humidity, but seed fails to germinate, this is called as dormancy. जब हम किसी सीड को सुटेबल टेम्परेचर में उसकी शोइंग करते हैं, सुटेबल ह्यूमिडिटी होती है, सुटेबल लाइट होती है, लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं करता, इसका कारण है डॉर्मेंसी, जिसको आप हिंदी में सुसुप्तावस्था कहते हैं। यहां मैंने लिखा है मेनी सीड फेल टू जर्मिनेट इवन इफ द एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल। दिस फेल्योर टू जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। सारी की सारी कंडीशन को फेवरेबल दे दिया जाए और सीड जर्मिनेट न करे, तो यह जो सीड का जर्मिनेशन का फेल्योर है, दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। अब हम लेते हैं काजेज ऑफ डॉर्मेंसी। फर्स्ट, परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट। इफ सीड कोट इज वेरी हार्ड, वेरी थिक, it is impermeable to humidity, water and oxygen, because water and oxygen are very important factor for the germination, and this thick coat that is quite impermeable for water and oxygen, they restrict the emergence of root and shoot. अगर इस तरह से इस कंडीशन में आया तो वह रूट और शूट दोनों के निकलने को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डॉर्मेंसी। अगर सीड कोट थिक है, इम्परमेबल है ह्यूमिडिटी और एयर के लिए, तो यह जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर देती है रूट और शूट के डेवलपमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डॉर्मेंसी। सेकेंड है इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो। इफ एम्ब्रियो इज इमेच्योर, देयर इज नो चांस ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इमेच्योर एम्ब्रियो। थर्ड है जर्मिनेशन इनहिबिटर। इफ साइनाइड, डाइनाइट्रोफिनॉल, azide, fluoride are present in the field, they inhibit the germination of seed. These are the inhibitors. Next, temperature. Many seed requires the favorable temperature to germinate, and this temperature of germination is optimum to 10 to 20 degree Celsius. Now, light. Many seed germinate in dark. Many seed germinate in dark or light. Influences seed germination. These are the causes of dormancy. First, permeability of seed coat. Second, immaturity of embryo. Third, germination inhibitor. Fourth, temperature, and fifth, light. Now, कैसे डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाए? That is the breaking of dormancy. First, scarification. Dormancy of seed caused by a hard seed coat can be removed by breaking, softening or weakening of seed coat is known as scarification. Various mechanical and chemical treatment have been used. Scarification में the seed coat is if seed coat is very hard, very thick, that inhibit
the seed germination, if by mechanical means or chemical means we remove that seed coat, that breaks the dormancy of seed. Now next, impaction. In some seed, water and oxygen are unable to penetrate seed or shaken vigorously to remove the plug. The treatment is called impaction. बहुत से सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, वो सारे पोर्स को, जर्मिनेटिंग पोर्स को प्लग कर देते हैं किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी मेथड के द्वारा। जब हम इस प्लग को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्शन। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन। द डॉर्मेंसी कॉज्ड ड्यू टू द कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो, these seed will not germinate until they have been exposed in well aerated moist condition under low temperature 0 to 10 degree centigrade for a week or 2 months. Such treatment is called stratification. बहुत से सीड ऐसे होते हैं जो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनका वेल जर्मिनेशन होता है, और जब हम इस टेम्परेचर पर रख देते हैं कि कुछ वीक और या कुछ सेवरल मंथ्स के लिए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट, टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन. I have previously told the optimum temperature of germination is 10 to 20 degree centigrade. 10 to 20 degree centigrade. Light respond to germination. Light respond to germination are known as photoblastic. किसी भी सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट का अगर रिस्पांस होता है तो आप इसे फोटोब्लास्टिक कहते हैं. अब फोटोब्लास्टिक में 3 प्रकार का है. फर्स्ट, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक. सीड रिक्वायर्स सिंगल एक्सपोजर टू लाइट. एक ही बार उसको लाइट में एक्सपोज कर दीजिए, और जब एक बार लाइट में आप इसको एक्सपोज कर देंगे तो उसका जर्मिनेशन जो है ये होगा. सेकेंड है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक. सीड रिक्वायर्स कंप्लीट डार्कनेस. नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड रिक्वायर्स कंप्लीट डार्कनेस. एंड थर्ड है नॉन फोटोब्लास्टिक सीड. They germinate in either light or dark. Now next, removal of inhibitor. जहां पर हम सीड को शो कर रहे हैं वहां पर अगर किसी प्रकार का इनहिबिटर है, जैसे साइनाइड है, डाइनाइट्रोफिनॉल है, एजाइड है, उसको हम रिमूव करें. दूसरी बात, कुछ नेचुरल इनहिबिटर होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, बार बार हम सीड को वॉश करते हैं, एंड दैट वॉशिंग दैट रिमूव्स द natural inhibitor. Now next है treatment with growth hormone, cytokinin and ethylene, that is responsible for the germination. If we apply for germination of seed both hormones, cytokinin and ethylene, the seed germinates quickly. So that is the application of hormones. That hormone will be endogenous or exogenous. अगर आप वो चाहे प्लांट के आंतरिक भागों में स्वयं हो या उसको बाहर से आप ट्रीटमेंट दें. इस प्रकार से डॉर्मेंसी के बारे में आपको बताया मैंने कि डॉर्मेंसी जब सारी कंडीशन को आप दे दें, फेवरेबल कंडीशन को दे दें, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, और तब भी सीड ये जर्मिनेट ना करे, और जब सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि सीड इज डॉर्मेंट, एंड दैट इज नोन एज डॉर्मेंसी. अब डॉर्मेंसी के फैक्टर क्या है उसको मैंने बताया आपको. डॉर्मेंसी की ब्रेकिंग कैसे होती है उसको मैंने बताया. तो आज हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन के पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले मैंने आपको डॉर्मेंसी डिस्कस किया, और जब डॉर्मेंसी डिस्कस करने के बाद काज ऑफ डॉर्मेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी किया मैंने. इस प्रकार से आप निश्चित रूप से इन वीडियो से, जो कि सिस्टमेटिक वीडियो चल रहा है, उसके लिए आप इंटेलेक्चुअल रूप से आप उसे पढ़ें, सीरियस होकर पढ़ें,
और जब आप सीरियस होकर पढ़ेंगे तो निश्चित है कि यू विल कंप्लीट योर एग्जामिनेशन। और अब आपकी सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो स्थितियां चल रही हैं उस स्थितियों में आपका वीडियो, आपका टॉपिक वीडियो लेक्चर के द्वारा, अपने टीचर के द्वारा ही पॉसिबल है। हम उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर, आज पार्ट फर्स्ट मैंने लिया है, ये 2 पार्ट में ये चैप्टर मैं समाप्त करूंगा। और अभी भी फिजियोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दैट इज द फ्लोरीन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। लेकिन एक सीरियल से मैं A to Z चैप्टर्स को ले रहा हूँ। आप इन चैप्टर्स को पढ़ें और बोर्ड पर मैंने पूरे के पूरे नोट्स लिख दिए हैं। इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और तभी जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं डॉर्मेंसी का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट पार्ट फर्स्ट ऑफ डॉर्मेंसी and germination of seed.